इसी तरीके से सरकार चलती है क्या? इतना ही पढ़ते हैं आपके अवर सचिव? अभी तो अब रिकॉर्ड बताइए, इनकी इनकी पर्सनल प्रेजेंस से कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में क्या हुआ दिखाइए। वेयर इज द रिकॉर्ड ऑफ द डिपार्टमेंट इंक्वायरी? एंड ये इतने इतने मदहोश हैं कि इनको यही नहीं मालूम कि क्या लिख रहे हैं। कल भी इनका एक मैटर आया था, ये बगैर कुछ लिखे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है क्या? आप लोगों की नौकरी कैसे चल रही है अभी तक? कल उनके बारे में भी लिखा है मैंने। कुछ भी कम्युनिकेशन कर देते हैं। अंडर सेक्रेटरी जो है ऐसे ही डीओ लिख सकता है किसी भी विभाग को? कैसे कर सकते हैं भलावी साहब इस तरीके का आप कारोबार? हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। क्लाइंट्स क्या होनी थी? जी मिनोट। किस तारीख का ऑर्डर है जिससे भलावी साहब को बुलाया था यहाँ पर? 29 मार्च मिनोट 29 मार्च 2023। 2023। एक सेकंड देख लेते हैं। 29 मार्च 2023 क्या लिखा था इसमें? श्री अन्नू भलावी लिखा तो है। अन्नू भलावी अंडर सेक्रेटरी इतना इतना इज प्रेजेंट इन पर्सन। ही वाज कॉल्ड टू एक्सप्लेन that what was the was called again mentioning a fact that petitioner was not participating in the departmental inquiry in his order dated itna, which has been approved by the additional chief secretary, whom also commits that additional director general administration headquarters had sent a note addressed to the ACS itna on the basis of which he has recorded this fact that petitioner was not participating. Malawi is made to read the note of the Additional Director General of Police, from which it is evident, as read over by Shri Bhalavi in para 4, that it is not mentioned in the report addressed to the that petitioner was not participating in the departmental inquiry. It is only mentioned that petitioner had not given his joining at the police headquarters, and due to pendency of the departmental inquiry, his subsistence allowance should be restricted to 50% only. इसी तरीके से सरकार चलती है क्या? इतना ही पढ़ते हैं आपके अवर सचिव? क्या हुआ मिनोट? क्या हुआ? ये लिखा तो सब कुछ तो लिखा है इसमें। There is no mention of this fact that petitioner was not participating in the departmental inquiry, a fact which is corroborated by Shri Shiv Kumar Srivastava, learned government advocate, that on 2/5/2022 departmental inquiry was concluded against the petitioner. If on 27/4/2022 petitioner was not participating, as has been sought to be made by Shri Annu Bhalavi, then how departmental inquiry could have been concluded on itna? Thus, it is evident that the Under Secretary had passed order dated 29/4 without there being any supporting material in a very casual manner, and it is apparent from the relevant order sheet that even the higher authorities relied on the Under Secretary and without verifying the facts signed the order sheets. This is a serious matter. Original record is sealed here and kept in the court. It is to be preserved by the Principal Registrar J in a safe custody. OIC Shri Himanshu Kartike is directed to produce complete file of the departmental inquiry. Shri Bhalavi shall remain personally present on the next date of hearing. So वो मिनोट वो 12 यही मिनोट मालूट में on the last date of hearing मिनोट it may be seen मिनोट has अभी तो अब रिकॉर्ड बताइए, इनकी इनकी पर्सनल प्रेजेंस से कुछ नहीं है। डिपार्टमेंट इंक्वायरी में क्या हुआ दिखाइए। Where is the record of the department inquiry? But can I submit something? हाँ। Not 27 supplementary reply which has been submitted. This petition in practice rendered in which the suspension was revoked. नहीं, सस्पेंशन may have been revoked, but can we exonerate under secretary for making an incorrect note? क्या 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 जो है इस इतना can he be oblivious of his responsibility as an under secretary to the government? Any order issued by him in the name of and by the order of the governor is binding. And ये इतने इतने मदहोश हैं कि इनको यही नहीं मालूम कि क्या लिख रहे हैं। Malord, may I make a submission? हाँ। Malord, subsequent to that particular order, Malord, which he passed, Malord, he filed again one additional written on behalf of the respondent only, Malord. Kindly see that additional reply, Malord. जी। They filed on 15 March 2023, Malord. कल भी इनका एक मैटर आया था, ये बगैर कुछ लिखे। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में है क्या? अच्छा, वो दूसरे भलावी हैं क्या, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले? पहले थे आप? नहीं, कोई दूसरे हैं वो? हाँ, वो भी वैसे ही लिखते हैं। आप लोगों की नौकरी कैसे चल रही है अभी तक? कल उनके बारे में भी लिखा है मैंने। कुछ भी कम्युनिकेशन कर देते हैं। अंडर सेक्रेटरी जो है ऐसे ही डीओ लिख सकता है किसी भी विभाग को? Malord, in their additional reply, Malord, now they making they change their statement by saying that I have participated in the inquiry, but when they call when provided number of reminder, I have not given my statement, and I have given my statement after a delay of 8 months, Malord. They are making this kind of a statement, Malord. कैसे कर सकते हैं भलावी साहब इस तरीके का आप कारोबार?
सर ये जो डिसीजन है सर, अरे डिसीजन तो हम आपके डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को कहीं से कोई चुनौती नहीं दे रहे। आप सरकार हैं, बिजनेस रूल्स में अंडर सेक्रेटरी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक कोई भी आदेश पारित करने के लिए सक्षम है। हमें इस बात का ज्ञान है, हमने बिजनेस रूल्स पढ़े हैं। ठीक है, आपकी अथॉरिटी को चुनौती नहीं दे रहे। बात यहाँ ये हो रही है कि आप बिगर मटेरियल के कैसे लिख देते हैं। ये कैसे लिखा आपने? सर या तो आप अपनी गलती स्वीकार करें तो हम इसको ऑर्डर में ले, ऑर्डर शीट में दैट यू एक्सेप्ट योर मिस्टेक, एंड उसको फिर भेजें हम चीफ सेक्रेटरी को आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। सर ये छानबीन समिति ने डिसीजन हमें छानबीन समिति से कोई लेना देना नहीं है। आपने यह किस आधार पर लिखा कि यह विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे, हमारा सिर्फ इतने से मतलब है, उसके बियॉन्ड कोई मतलब नहीं है। यही छानबीन समिति में आया सर ये। कौन सी छानबीन समिति, कौन कौन था छानबीन समिति में? ये सर एसीएस की अध्यक्षता में छानबीन समिति बनी सर। हाँ, तो फिर एसीएस को बुलवाना पड़ेगा, बुलवा लीजिए एसीएस को। वो भी मतलब बिगर कागज पढ़े साइन करते हैं। कौन है एसीएस आपके जिन्होंने साइन किया था इसको? सर इसमें राजेश राजौरा साहब थे, अभी नहीं है सर। हैं? अभी नौकरी में है नहीं है? नौकरी में है नहीं है? है। हाँ, नौकरी में तो फिर बुलवा सकते हैं ना फिर तो। जी, ये सर 29/4 को जो छानबीन समिति की बैठक हुई सर, उसी में ये छानबीन समिति क्या ने लिखा डिसीजन लिया। बताइएगा, सर। बताइएगा। उस बैठक में आप भी थे? नहीं अच्छा। राकेश कुमार चारी तत्कालीन कहाँ लिखा है इसमें कि वो विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? तो ये छानबीन समिति ने जो नहीं, डिसीजन लिया सर, अरे भाई, उसी आधार पे ये अप्रूव हुआ है। नहीं 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 नहीं। फिर अंडर सेक्रेटरी के साइन हुए सर। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है। सर इसमें ऐसा कहाँ लिखा है कि विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे? तो पढ़िए तो इसको, 29/4/2022 को पढ़िए। हाँ सर पढ़ लिया सर। इसको दोबारा पढ़िए ना, सबके सामने पढ़िए, सर पढ़िए, जोर से पढ़िए। इसमें विभागीय जांच में भाग नहीं ले रहे ऐसा कहाँ लिखा है, पढ़िएगा। सर इसमें नहीं आया सर। फिर आपने कहाँ से लिख दिया था? सर इसमें जो लास्ट पैरा आपने कहाँ से लिखा? हाँ पढ़िए, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। समिति द्वारा श्री राकेश कुमार छारी तत्कालीन एडीओपी पृथ्वीपुर जिला निवाड़ी के विरुद्ध पुलिस मुख्यालय के आदेश दिनांक 21/2020 द्वारा अति आवश्यक चुनाव संबंधी ड्यूटी हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल उपस्थित होने के लिए निर्देशित किए जाने के बावजूद वे कर्तव्य से अनुपस्थित रहे एवं वो अलग चीज है, विभागीय जांच में भाग न लेना अलग चीज है। यू कैन इंक्वायर, यू कैन इशू अ शो कॉज नोटिस, यू कैन conduct a departmental inquiry for this misconduct separately. सर Where it is mentioned that he was not participating in the departmental inquiry as was mentioned by you. एवं पुलिस मुख्यालय में उपस्थित नहीं होने एवं विभागीय जांच में जांच हेतु उपस्थित नहीं होने के कारण निलंबन से बहाल नहीं किए जाने। कहाँ लिखा है? पढ़िएगा जरा। इनको बुला लेते हैं, दीजिएगा डिपार्टमेंट इनको रिकॉर्ड दीजिएगा कब लिखा उन्होंने कि उपस्थित नहीं हो रहे। खोलिएगा रिकॉर्ड। बुलवा लीजिए राजेश राजौरा जी को, कल बुलवा लीजिए। नहीं नहीं, इस तरीके से कोर्ट के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगी। कॉल हिम, कॉल हिम टुमारो। एडीजी भी है सर। हाँ, उनको भी बुलाएंगे ना, श्री श्रीनिवास राव, श्री डी श्रीनिवास राव, डॉक्टर राजेश राजौरा, श्री राघवेंद्र भारद्वाज और श्री अजय गुप्ता, ये चारों को बुलाएंगे। चारों आएंगे। कैसे, किस आधार पर ये लिखते हैं? रिक्वेस्ट हाँ दिस पिटिशन नॉट है? क्या हो गया? दिस पिटिशन नॉट नहीं नहीं, it is not, sorry. and Now show me from the department and inquiry report that this officer Rakesh Kumar Chari was not appearing before the inquiry officer. Show me that. can it be kept in at 2:15? जी, Can it be kept at 2:15? We'll 2:15 नहीं, 2:15 तो फाइनल हियरिंग डे है। कोई 1 बजे लेते हैं, 1 बजे लाइए, तो यहाँ रखिए और इन चारों को बताइएगा इन्होंने किस आधार पे लिखा है। ये डेट्स बताइएगा किस किस तारीख को ये उपस्थित नहीं हुए।
विभागीय जांच में? My lord, they even filed the affidavit also, and they admitted that I have participated in the inquiry. कहाँ है वो एफिडेविट? My lord, there are additional reply, my lord. एडिशनल रिटर्न? Written, my lord. हाँ पढ़िएगा. My lord, kindly see the additional written. एफिडेविट जो है Come, my lord. Page In पाँच पर. the additional written, my lord. हाँ Kindly see para number 3, my lord. जी, एक मिनट प्लीज रुकिए. उन्होंने लिखा है ना इसमें कि 8 महीने तक आपको रिमाइंडर दिए गए. Right, my lord. They have mentioned, my lord. Now, my lord, kindly see page number 7, my lord. 7 ऑफ दिस. In this same additional, my lord. Para number 6, my lord. एक मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, पहले इसको हाईलाइट तो कर लें ये जो, जी, my lord. क्योंकि most respectfully submitted that the prosecution witnesses were examined. Statement इतना इतना and during various reminders were sent, but have done examination of the prosecution witness. चलिए अब पेज नंबर 7, my lord. 7. That is para number 6, my lord, where they have himself admitted that. एक सेकंड रुक जाइएगा. पैरा नंबर 6. यस जी. Vivek Raj Singh, police उप महानिरीक्षक. हाँ Vivek Raj Singh, my lord, the inquiry officer, my lord. हाँ. He is making the statement. आपने तो तुरंत दे दिया अपना Yes, my कथन. lord. Yes, my lord. तो ये एफिडेविट किसने फाइल किया है? ये कौन सज्जन है ये? Mr. Himanshu, करकेटिया. my lord. कहाँ है कर्टिकिया साहब? आप हैं क्या हिमांशु कर्टिकिया साहब? कहाँ है? उनको बुलवा लीजिएगा जरा, ये सब डिविजनल ऑफिसर पुलिस को. हाँ तो क्या हो गया? बालाघाट मध्य प्रदेश में बाहर है ना? लिखिएगा. देयर इज बंडल ऑफ लाइज विच इज apparent फ्रॉम प्राइमा फेसी फ्रॉम द रिकॉर्ड. श्री अन्नू भलावी, डिप्टी अंडर सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट, हैज पॉइंटेड आउट दैट ही हैड रिकॉर्डेड द ऑर्डर शीट. किस तारीख की ऑर्डर शीट है आपकी? थोड़ा सा मदद करिए, बताइए इनकी ऑर्डर शीट किस तारीख की है जिसके ऊपर से पूरी कहानी शुरू हुई थी? My lord. Kindly see, my lord, 29/4/2022. ऑर्डर R3 29 April 2022. 29 अप्रैल 22. नहीं, 29 अप्रैल तो है ही नहीं My इसमें. lord, Annexure AR3, my lord, where he passed the order. This AR3 बताइएगा. AR3 तो ऐसा बोलिए ना. AR3, my lord. AR3 किसके साथ लगाया है? AR3, my lord, ने लगाया है एडिशनल रिटर्न के साथ लगाया, my lord. एडिशनल रिटर्न के साथ. वही तो अभी देख रहे थे. AR वो मतलब जो AR3 नहीं, वो AR2 है, 1 है, my lord. फिर AR3 किसके साथ लगाया? AR3 किसके साथ लगाया? मतलब R3 है, मान लो, जो उन्होंने मिसलीडिंग किया है वो R3, नॉट AR. R3 तो ऐसा बोलिए ना R3. वकील साहब. R3 देखें. चलेगा. श्री अनु भलावी सबमिट्स दैट हिज नोट has contained dated 29/4/2022 is based on as contained in annexure R3 and closed with the reply filed wide IA 9586/2022 की report dated 29/4/2022 signed by Dr. Rajesh Rajora, Additional Chief Secretary Home, comma
Shri D. Srinivas Rao, Additional Director General of Police within bracket Administration, Police Headquarters, Bhopal, comma, Shri Raghavendra Bhardwaj, Additional Secretary Law and Legislative Department, Bhopal Department, and Shri Ajay Gupta, Additional Secretary Home, who were members of the said committee, wherein it is noted by the committee that ये पैरा 6 पूरा का पूरा कोट कर दीजिएगा, full stop. Thus, the allegation on the petitioner is that he was not participating in the departmental inquiry. Next para. Thus, Shri